the most gracious, the most merciful. This is ESL Academy of Linguistic and Literature, and I'm your coach. I'm your Sir Rana. Today we are going to discuss phonetics, difference between phonetics and phonology. We'll discuss branches of phonetics. We'll also discuss what is phonetics and phonology. Let's start. Before that, we have discussed sound, structure, and meaning. When we talk about sound, we will get phonetics and phonology. And in structure, we have morphological structure in language, we have syntactic structure, we have got meanings as well in language, like pragmatic meaning, semantic meaning. We have already discussed about semantics and structure, something like that. And today we are going to discuss phonetics. Phonetics, please write it down if you wish. Phonetic is the study of perception, speech, perception, production, transmissions, and classification of human speech sound. Phonetics होता है transmission, classification, production, and perception of speech sound. So it's called phonetics. And phonetics is a general term. It's not language specific. Whenever you talk about phonetics, it means you are talking about any language. It's not language specific. But whenever you discuss about phonology, it means it is language specific. You can either discuss Urdu phonology, English phonology, Portuguese phonology, Spanish phonology, German phonology. It is a language specific. But whenever you talk about phonetics, it's a general term. It can be applied on any language. Every language need to learn organ of speech. What are the organs of speech? What is active articulator? What is passive articulator? What is alveolar ridge? What is uvula? What is larynx? What is pharynx? And what is Adam apple? What is teeth? What is a hard palate? What is soft palate? These are existed in phonetics, and these topic would be discussed in phonetics. Whenever you talk about phonetics, you need to discuss what is alveolar ridge sound, what is velum, what is hard palate, what is soft palate, what is nasal sound. These are discussed in phonetics, and definitely tomorrow we'll discuss about organs of speech. Today we'll learn about phonetics only. We'll learn branches of phonetics, and phoneticians are interested what are the organs of speech. And these phoneticians, they belong to any language. They can either study Urdu or German language, French language, Urdu language, any language they can study. And whenever they talk about phonetics, it means they are discussing all language and their organs. They are involved in a way to produce sound, in a way to transmit sound, in a way to produce classification of sound. And what are the organs? They are involved in a way to speak. Articulators and organs, they are same. So it can be used as a substitution of meaning. Organs, ORGANs, organs and articulators. So talk about active articulators. What are active articulators? Active articulators are like that which are vibrant, which are active all the time, like tongue. I am speaking with you, my tongue is involved, and this tongue is playing role to produce sound. Even my lips, they are also in a movement, and my you could say like that, my uvula, my tongue. And there is a sound which is produced through hard palate. There is a sound which is also alveolar ridge, like thought, speak thought, think. The tip of your tip of the tongue that will touch your upper teeth back ridge. This is called alveolar ridge. Speak word,
thought. So whenever you speak thought, think, thought, your tip of the tongue will touch upper teeth, back, a raised ridge. It is called alveolar ridge sound. So there is a nasal sound like N, M. So this is also nasal sound. So this is what a phonetician studies, or you could say phoneticians are interested to study in organs of speech, especially in phonetics. So let's discuss what is the difference between phonetics and phonology, what are the branches, or you could say branches of phonetics. So first of all, let's discuss phonetics and phonology. Phonology is a language specific. When you study phonology, you will take specific language. For example, we take English language, and we know that in English language there are 44 phonemes. How many phonemes are in English language? Letters and phonemes are different. Phonemes are sounds in language. If somebody asks you how many sounds are in English language, mostly whenever you go for interview, you are going for interview, and there are some interviewers. They are going to interview you. What will they ask? They will ask how many sounds are in English. If you know something about phonemes, you will say there are 44 sounds. How many vowels are in English language? You will say there are 20 vowel sounds. And once they ask how many consonants sounds in English language, you will say there are 24 sounds, and they all added up 44 phonemes. And once they ask how many letters are in English, you will say that there are 26. It means that you will take specific language, you will study their sounds, their productions, the accent, their way of communication, everything you study in a specific language. That is a part of phonology. And phonology will give you how to pronounce sound, how to articulate sound, how to give good pronunciation, how to talk according to IPA, received pronunciation, how to talk in accent, good accent. So that is what you learn in phonology. Once you learn phonology, you will be able to talk well, to pronounce well, to communicate well. So that can be learned in phonology. Definitely you'll be learning in our course, MA English course, especially in PU course, you will be learning about phonology as well. So if we talk about Urdu language, you know that in Urdu language there are almost 39 basic letters. But once we talk about English language, there are 26 letters. So both languages there is a great difference. There is a great difference between Urdu and English. We can't compare two languages. In English, once we give stress, meaning is changed. Even verb can be changed into noun. Noun can be changed into verb. So even sentence can be changed. I say that come here. I say come here. Meanings are changed. I say I will see you. I will see you tomorrow. I will see you tomorrow. Meaning is changed. As I give stress on certain part of sentence, it will change meaning. So therefore, we need to learn intonation pattern, rising rhythm, and we know where the rhythm is going down. We have to learn each and everything related to language, the pauses, stress, and consonant clusters, vowel, long vowel, short vowel, everything we need to learn if we really want to learn language. Let's discuss. If you've got assignment, I have sent you one assignment. Please open your PDF. There is assignment. This assignment will enable you. There are certain overview. There is an overview. What is phonetic and phonology? Today we'll discuss phonetics versus phonology, branches of phonetics, voiced and voiceless sound. कि वॉइस साउंड कौन सी होती है आज हम ये लर्न करेंगे, और उसके बाद प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. Respected students, you are listening to the voice of Sir Rana. Our contact number is 030563194464. Subscribe, like our channel, the ESL Academy. Let's discuss branches of linguistic. अगर हम branches of linguistic की बात करें, branches of phonetics की बात करें, तो phonetics की 3 main branches हैं. पहली branch acoustic phonetics, ACOUSTIC, acoustic phonetics.
अक्यूस्टिक फोनेटिक क्या है, विल सी। ऑडिटरी फोनेटिक्स, ऑडिटरी का मतलब लिख लें, जो कानों से रिलेटेड, जो हियरिंग से रिलेटेड, जो लिसनिंग से रिलेटेड है, उसे कहते हैं ऑडिटरी। एम आई ऑडिबल टू यू, मैं आपसे क्या पूछ सकता हूं, एम आई ऑडिबल टू यू, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं, क्या मैं आपको सुनाई दे रहा हूं, एम आई ऑडिबल टू यू। सो ऑडिबल ऑडिटरी से, लिसनिंग से रिलेटेड। देन आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, आर्टिकुलेटरी और ऑडिटरी जो दोनों कंबाइंड होकर डिस्कस होते हैं अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। अक्यूस्टिक के आगे लिख लें, मानिए उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो प्रोडक्शन का बायस बनती है साउंड का, जो इन्वॉल्व होती है साउंड में, जो आवाज को निकालने में इन्वॉल्व होती है, उनकी स्टडी को, फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी को अक्यूस्टिक फोनेटिक कहते हैं। तो जब हम अक्यूस्टिक फोनेटिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें ऑडिटरी और आर्टिकुलेटरी दोनों डिस्कस होंगी। ऑडिटरी का मतलब लिखिए ऐसा फोनेटिक्स, ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपने कानों से सुनते हैं। उसमें जो इनर ईयर्स है, अपर ईयर्स हैं, आउटर ईयर्स हैं, मिडल ईयर्स हैं, इनर ईयर्स हैं, ये सारे डिस्कस होते हैं। यानी जो कान का निजाम है, जो लिसनिंग का निजाम है, जो हियरिंग का पूरा सिस्टम है, वो सारा स्टडी करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि लिंग्विस्टिक जो है वो स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी है लैंग्वेज की। ये आपको ये नहीं बताता कि वावल कहां पे आना है, साउंड कहां पे, कहां आपने स्ट्रेस देना है, कैसे नहीं करना, कैसे करेक्ट सेंटेंस लिखना है, कैसे आपने ठीक सेंटेंस लिखना है, आपको ये नहीं बताता लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक आपको जैसी लैंग्वेज है उसको डिस्क्राइब कर देता है, उसको लिख देता है, उसको बता देता है कि भाई ये लैंग्वेज के अंदर। ही इज नॉट अ टीचर इन फैक्ट। लिंग्विस्टिक जो लिंग्विस्ट होता है वो टीचर नहीं, ही डिस्क्राइब्स लैंग्वेज, ही टॉक्स अबाउट लैंग्वेज, ही डज नॉट टीच यू लैंग्वेज। वो लैंग्वेज टीच नहीं करता, लेकिन जब वो ये सारे सिस्टम को स्टडी करता है तो वो एक अच्छा टीचर भी बन जाता है लिंग्विस्ट। चूंकि वो लैंग्वेज को स्टडी कर रहा है तो वो एक लैंग्वेज का अच्छा टीचर भी बन जाता है। तो देखें, पहले तो हम लर्न करेंगे कि इसकी ब्रांचेस क्या हैं। सबसे पहले अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में हम ये देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल कौन से ऑर्गन्स हैं, पार्ट्स हैं जो लैंग्वेज की प्रोडक्शन का बायस बनते हैं। उसमें हम देखेंगे कि पैसिव आर्टिकुलेटर्स क्या है। आर्टिकुलेटर जो बोलने वाले जो प्लेसेस हैं जो बोलती हैं, जो बोलने में मदद देती है, जैसे टीथ है, जैसे लिप्स हैं, अपर हैं, लोअर लिप्स हैं, एल्विलर रिज है, हमारी लेरिंग्स हैं, फेरिंग्स हैं, हमारे लंग्स हैं। अब जो एयर है, एयर का फ्लो ही तो आवाज है। अगर आप एयर नहीं है तो आप कभी भी आप बोल नहीं सकेंगे और ना कोई आपको समझ सकेगा, ना सुन पाएगा आपको। एयर का निजाम जो है ना, ये एयर अंदर से जो लंग्स हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और बाहर आती है, कहां ये रुकती है, जहां पे इसका क्लोजर्स होता है, जहां ये स्टॉप होती है तो वो वहां पे क्या हो जाएगा, कंसोनेंट हो जाएगा, साउंड कंसोनेंट। अगर वो टोटली विदाउट किसी रुकावट के प्रोड्यूस हो रही है साउंड तो वो सिंपली वावल है, ए ई आई ओ यू, ये सब वावल है। तो फिर हमने लैंग्वेज को जस्ट लेटर के अकॉर्डिंग भी इन्वॉल्व नहीं, उसके अकॉर्डिंग एवेल्युएट नहीं करना। जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, उनमें बड़ा फर्क है। जो साउंड, फॉर एग्जाम्पल हम फोन है, PHONE फोन बन रहा है, तो साउंड के लिहाज से जब हम उसे ट्रांसक्राइब करते हैं तो वो फोन जो है वो वैसे तो F से बनना चाहिए, लिखना चाहिए। ट्रांसक्रिप्शन में और है, साउंड में कुछ और है। जब हम उसे ट्रांसक्राइब करेंगे, लिखेंगे तो PHON से वो बन रहा है। लाफ GH, LAUGH, तो वो वहां पे लाफ GH जो है वो F की साउंड दे रहा है। तो इस तरह साउंड आप रिटन जो है वो कंफ्यूज होते हैं। रिटन लैंग्वेज और स्पोकन लैंग्वेज में बड़ा फर्क है। हम जस्ट उससे रिटन लैंग्वेज में हम समझते हैं कि वट एवर वी सी 26 लेटर वी शुड राइट अकॉर्डिंग टू 26 लेटर। नो, देयर आर 44 फोनीम्स। यहाँ पे 44 फोनीम्स भी हैं, हमने उनको भी लर्न करना है, फिर हम जाके लैंग्वेज को अच्छी तरह लर्न कर पाएंगे। फोनेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले अक्यूस्टिक फोनेटिक के फिजिकल प्रॉपर्टीज कहाँ कहाँ इन्वॉल्व है। फिर हम लर्न करेंगे ऑडिटरी के कान जो है, ईयर जो है, हियरिंग जो है वो कहाँ कहाँ इन्वॉल्व होती है फोनेटिक्स के अंदर। हम फिर लर्न करेंगे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक क्या है, आर्टिकुलेटर्स कौन कौन से हैं, एक्टिव कौन से हैं, पैसिव कौन से हैं, एक्टिव और पैसिव कहाँ वर्क करते हैं, कहाँ कौन सा आर्टिकुलेटर एक्टिव रहता है, कहाँ पैसिव रहता है। हमारी जो टंग है वो कितनी वाइब्रेट है, कितनी एक्टिव है स्पीच प्रोडक्शन, हमारे टीथ ऊपर और लोअर कितने, अपर और लोअर लिप्स कितने, उसके बाद जो हमारी हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, जो वेलम है, जो लैरिंग्स है, जो फेरिंग्स है,
और जो लंग्स हैं ये कहाँ तक इन्वॉल्व होते हैं लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने में, वॉइस को, इन वॉइसेस जो वॉइस इसके अंदर मौजूद है लैंग्वेज के अंदर, इसकी प्रोडक्शन में कहाँ कहाँ साथ देते हैं हमारा। विल सी ऑल दिस। लेट्स सी, मेरी असाइनमेंट जो है काइंडली उसको ओपन कीजिए। फोनेटिक्स लिखा हुआ है, फोनेटिक्स की डेफिनेशन लिखी है, एक मैंने आपको लिखवाई है, वो भी ठीक है, उसको भी देख लें। और जो ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं इनको हम कल पे इनको कल असाइनमेंट एक रखेंगे, ऑर्गन ऑफ स्पीच, बहुत बड़ा वसी टॉपिक है जिसको कल डिस्कस करेंगे। उसमें टंग है, लिप्स है, टीथ है, अल्वीलर रिज है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, विलम्स है, उसके बाद फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, यूला, ग्लोटस है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। दीज आर द ऑर्गन ऑफ स्पीच एंड दीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। टुमारो विल सी दिस असाइनमेंट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स और फोनेटिक्स क्या है। अब फोनेटिक्स की डेफिनेशन जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की है, एक प्रेजेंटेशन बनी हुई है, काइंडली उसके ओपन कर लें। फोनेटिक्स इज अबाउट द फिजिकल प्रोडक्शन एंड परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड। मैंने आपको बताई कि क्लासिफिकेशन, परसेप्शन, क्लासिफिकेशन अंडरलाइन कर लें, भले लिख लें इस डेफिनेशन को। फोनेटिक इज द स्टडी ऑफ परसेप्शन, क्लासिफिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, प्रोडक्शन, परसेप्शन ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। यानी जो ह्यूमन स्पीच साउंड है उसकी क्लासिफिकेशन, उसकी प्रोडक्शन, उसकी ट्रांसमिशन, उसकी ट्रांसक्रिप्शन, ये फोनेटिक्स है। और ये चीजें हम फोनेटिक्स में डिस्कस करेंगे, जब ब्रांचेस डिस्कस करेंगे उसमें ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। जो उसकी डेफिनेशन नीचे पहली जो डेफिनेशन जो लिखी हुई है ये है, नीचे फिर देख लें। इट इज अ स्टडी ऑफ द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ स्पीच, यानी जो फिजिकल एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं स्पीच को प्रोड्यूस करने में, हम उनको स्टडी करेंगे। और ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है कि ये सिर्फ उर्दू का फोनेटिक नहीं है, ये अरबिक नहीं है, ये जर्मन नहीं है, ये पुर्तगाली नहीं है, ये स्पेनिश नहीं है, ये कोई फ्रेंच नहीं है स्पेसिफिक। ये हर लैंग्वेज का आपको स्टडी करने पड़ेंगे और ये इन्वॉल्व होते हैं। ये जो स्टडी है, आप किसी भी लैंग्वेज को स्टडी करें तो ये सारे ऑर्गन्स जो हैं उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो भाई ये जर्नल हुआ, ये कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फोनेटिक्स जो है वो कोई लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, फोनोलॉजी जो है, जो इसका हिस्सा ही है, जो इससे रिलेटेड ही है फोनेटिक्स से, जो इसकी सब फील्ड है, बड़ा फोनेटिक्स है ना, तो उसके नीचे आएगी फोनोलॉजी, वो लैंग्वेज स्पेसिफिक हो जाएगी। चूंकि हमने इंग्लिश को स्टडी करना है, हम इंग्लिश को स्टडी कर रहे हैं, तो फिर हम इंग्लिश की फोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे टुमारो। It is a study of physical aspect of speech. It studies all the physical speech sound. जितनी भी speech sound है उसको ये study करता है। Phonetics is all about the studying the sounds we make when we talk. Phonetics उन तमाम sound को study करता है जो हम बात करते हुए जो निकालते हैं मुंह से। और ये हमारा जो vocal cords हैं, जो हमारा mouth है, ये एक फैक्ट्री है काउंटलेस साउंड प्रोडक्शन करने का। तो आप इसके जरिए बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हैं। हर लैंग्वेज का अलग सिस्टम है, हर लैंग्वेज का अलग से उसका कॉन्सोनेंट क्लस्टर है, उसके वॉवल्स हैं, उसके कॉन्सोनेंट्स हैं, कहीं स्ट्रेस टाइम है, कहीं कुछ और तरह की लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज कहीं स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज होती है, तो स्ट्रेस से मीनिंग चेंज हो जाते हैं। कहीं पे आप इम्फेसाइज करते हैं सर्टन पार्ट पे, वो चेंज हो जाती है प्लेस। तो हर लैंग्वेज एक डिफरेंट अपना उसका स्ट्रक्चर है। हम उसकी लिहाज से, चूंकि हम इंग्लिश स्टडी कर रहे हैं तो हम इंग्लिश में एक को ही देखेंगे। नीचे फोनोलॉजी की भी डेफिनेशन लिखी है। फोनोलॉजी डील विद सिस्टम्स एंड पैटर्न्स ऑफ स्पीच साउंड इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के अंदर जो सिस्टम है साउंड का, हम वो देखेंगे। हाँ जी, हमें पता है कि उर्दू में कितने 39 होते हैं लेटर्स, जो उसके बेसिक लेटर हैं। हाँ जी, आप इंग्लिश में आ जाए, कितने अल्फाबेट्स हैं? उसमें अल्फाबेट हैं 26 हैं, जिसमें 5 वावल हैं और 21 जो हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इसी तरह उसके अपने, उर्दू के अपने, स्पेनिश के अपने। हम जिस लैंग्वेज को स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश है, तो इंग्लिश के हम देखेंगे कि उसके अंदर कितने साउंड्स हैं, कितने फोनीम्स हैं, कितने उसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, उसका सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जिस लैंग्वेज को स्टडी करेंगे उसी लैंग्वेज पे आप ये फोनेटिक्स का नॉलेज अप्लाई करके उसका नॉलेज अप्लाई करेंगे, और जो फोनोलॉजी है वो आपको हेल्प करेगी किसी खास लैंग्वेज को लर्न करने में। अब देखें, एक राइटर है, एक लिंग्विस्ट है, उसने इसको इस तरह डिफाइन किया है। कहता है कि फोनेटिक्स जो है, फोनेटिक कलेक्ट्स, जो फोनेटिक्स होता है, जो फोनेटिक का सब्जेक्ट है, फोनेटिक कलेक्ट्स द रॉ मटेरियल एंड फोनोलॉजी कुक्स इट। लिख ले
कि फोनेटिक्स जो है वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करता है और जो फोनोलॉजी है उसको कुक कर देता है। देखिए उसने कितनी जबरदस्त उसने कि फोनेटिक्स का नॉलेज है वो आपको हेल्प करता है भाई स्पीच कहां से निकलती है, कहां से वावल निकलता है, कहां से कॉन्सोनेंट निकलती है, कहां क्लोजर होता है, कहां पे फ्रीली हवा जो है वो बाहर आती है मुंह से, और बड़ी जबरदस्त फ्रीकेटिव साउंड कहां से निकलती है, प्लोसिव साउंड कहां से निकलती है, जो एकदम हवा बाहर से आती है वो कहां कैसे निकलती है, प्लोसिव साउंड, फ्रीकेटिव साउंड जो साइडों से हवा निकलती है वो कैसे निकलती है, स्ट्रेस कैसे दिया जाता है, एल्विलर साउंड कैसे होती है, हार्ड पैलेट की साउंड कैसे होती है, जैसे हम कहते हैं कैट कार, इट इज माई कार, तो हम कार भी कह सकते हैं, लेकिन कार जो है वो उसमें तो कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हो रही, लेकिन आग ने अपने जब खास साउंड जो है वो प्रोड्यूस करनी है तो वो सॉफ्ट पैलेट से निकलेगी, आपकी जो टंग है वो जाके बैक सॉफ्ट पैलेट को टच करेगी तो फिर वो आवाज निकलेगी खैट खैट। अगर ठीत ठीत आप ठीत बोलते हैं या आप बोलते हैं था साउंड बोलते हैं तो टिप ऑफ द टंग फौरन आपकी एल्विलर रिज को टच कर लेगी, आप प्रोड्यूस करके देख लें। तो ये जो नॉलेज है ये आपको कौन देगा, ये नॉलेज आपको फोनेटिक देगा, फोनेटिक्स आपको ये नॉलेज देगा। फोनोलॉजी ने डील करना है एक खास लैंग्वेज को, उसके पैटर्न को, उसके साउंड स्ट्रक्चर को। इट डिस्क्राइब द वे साउंड, अगर आपने असाइनमेंट ओपन की हुई है तो वो काइंडली आपको ज्यादा समझ आएगी, आप ओपन कर ले, मैं साथ साथ उसको डिफाइन कर रहा हूं। आपके पास जो मैंने आपको असाइनमेंट सेंड की है, लास्ट में जो सेंड की है आप, ये आप ओपन करें, वो साथ बनी हुई है, स्लाइड्स बनी, आगे आगे आप उसको यूज कर सकती हैं। इट डिस्क्राइब द वे साउंड फंक्शंस, यानी साउंड कैसे फंक्शन करती, कैसे काम करती है विद इन अ गिवन लैंग्वेज, किसी एक गिवन लैंग्वेज। ये नहीं कि आप सारी लैंग्वेज को फोनोलॉजी के अंदर एकदम स्टडी नहीं कर सकते, या आपको खास लैंग्वेज दी जाएगी उस लैंग्वेज को आप स्टडी करेंगे, वो फोनेटिक्स है जो सारी लैंग्वेज का जर्नल है, उसमें आप उसका नॉलेज हासिल करें, उसके बाद किसी लैंग्वेज पे अप्लाई कर लें। आपके लिए कोई भी लैंग्वेज जो है उसकी साउंड्स को स्टडी करना आसान होगा, क्योंकि आपने सारे ऑर्गन को स्टडी कर लिया है फोनेटिक्स में। आपने आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स देख लिया, आपने ऑडिटरी फोनेटिक्स देख लिया, आपने अकूस्टिक फोनेटिक्स को देख लिया है, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न फोनोलॉजी। यू कैन अप्लाई इन एनी लैंग्वेज। द नॉलेज ऑफ फोनेटिक्स कलेक्ट्स रॉ मटेरियल, आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, नॉलेज मिल जाता है फोनेटिक्स में, एंड फोनोलॉजी विल कुक इट, और फोनोलॉजी आपकी हेल्प करेगी इसको प्रोड्यूस करने में, अच्छी तरह से साउंड निकालने में। हम लोग चूंकि इसका नॉलेज हासिल नहीं करते, हम तो बाज़ औक़ात किसी जो नेटिव स्पीकर है उससे बात करें तो शायद वो हमारी बात ही ना समझे, क्योंकि हम तो साउंड जो है जो प्रोड्यूस करनी होती है वो उसको उर्दू से ही इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। जैसे काफ की साउंड को हम खा साउंड को काफ की साउंड से कर लेते हैं कंपेयर, इट कैंट बी अप्लाइड ओवर देयर। उसमें बाज़ का प्लोसिव साउंड यूज होती है, फ्रीकेटिव साउंड यूज होती है, कौन सा ऑर्गन यूज होता है, हर लैंग्वेज में अलग अलग यूज होता है। जब आप फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का नॉलेज हासिल कर लेंगे, यू विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश, यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट प्लेस, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन एंड प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि ये भाई कहां से साउंड प्रोड्यूस होनी है, इसमें अल्विलर रिज इस्तेमाल होगी या इसमें हार्ड पैलेट इस्तेमाल होगी, या टिप ऑफ द टंग अल्विलर रिज को टच करेगी, या टिप ऑफ द टंग जो है अपर टीथ को टच करेगी, लोअर टीथ को टच करेगी, या मेरी सॉफ्ट पैलेट को, हार्ड पैलेट को, या मैंने ये साउंड हलक से निकाल दी है, कैसे साउंड प्रोड्यूस करनी है। मैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा इंग्लिश, कहीं मैं रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन को यूज नहीं कर रहा, तो ये आपको, ये नॉलेज आपको इस काबिल बनाएगा, यू विल स्पीक गुड, यू विल स्पीक इंग्लिश विद गुड प्रोनाउंसिएशन। लेट्स स्टडी। तीसरी डेफिनेशन है फोनोलॉजी की, यहां पे लिखी हुई, फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड, कैसे ऑर्गेनाइज होती है, मुनज़्ज़म होती है, एंड यूज इन अ नेचुरल लैंग्वेज। आगे स्लाइड है, फोनेटिक वर्सेस फोनोलॉजी, यानी फोनोलॉजी वर्सेस फोनेटिक। एक साइड पे फोनेटिक्स की कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, एक साइड पे फोनोलॉजी के लिखे हैं। जब इन सबको आप देखेंगे वन बाय वन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज फोनेटिक्स एंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी, आपको क्वेश्चन आता है, इम्तिहान का क्वेश्चन है, मैंने उसकी आपको जो स्लाइड ये जो सेंड की है प्रेजेंटेशन आपको जो सेंड की है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। फोनेटिक्स और फोनोलॉजी का डिफरेंस बताइए, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स की तारीफ कीजिए, ब्रांचेस ऑफ फोनेटिक्स बताइए। आप फौरन इस क्वेश्चन को, यही असाइनमेंट जो है ऐसे लिख दे हूबहू, बड़े अच्छे बड़े विटी रिमार्क्स हैं,
एनालाइज द फोनोलॉजी क्या करती है, एनालाइज द साउंड पैटर्न्स ऑफ द पर्टिकुलर लैंग्वेज, किसी खास लैंग्वेज की उसको एनालाइज करती है, उसको देखती है कहाँ उसकी साउंड है, कैसे प्रोड्यूस करनी है, कहाँ से शॉर्ट वावल, साउंड वावल, लॉन्ग वावल कहाँ है, वावल साउंड क्या है और कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है। ये आपको फोनोलॉजी जब आप उस लैंग्वेज पे अप्लाई करेंगे इसका नॉलेज तो आपकी हेल्प करेगी। फोनेटिक साउंड्स आर सिग्निफिकेंट एंड एक्सप्लेनिंग हाउ दीज साउंड्स आर इंटरप्रेटेड बाय द नेटिव स्पीकर। एनालाइज, अब फोनेटिक्स क्या करता है, एनालाइजेस प्रोडक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्पीच साउंड रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज। अब उसने बताया कि रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेज, किसी खास लैंग्वेज का नहीं, ये आपको इस तरह लैंग्वेजेस की स्टडी करवाता है, उनके बारे में इस तरह उसकी साउंड पैटर्न को बताता है कि किसी खास लैंग्वेज का नहीं, जिस जो सी लैंग्वेज पे आपका मन चाहे उस पर अप्लाई कर ले लर्न करने के लिए उसका साउंड स्ट्रक्चर। लेकिन आपको अक्यूस्टिक फोनेटिक लर्न करना पड़ेगा, फोनेटिक्स लर्न करना पड़ेगा, ऑडिटरी फोनेटिक्स लर्न करना पड़ेगा, उसका पूरा निजाम, ये इसके ऊपर बुक्स लिखी हुई हैं। ये तो एक हमने क्वेश्चन किया ना, इसके ऊपर अक्यूस्टिक फोनेटिक की अलग बुक है, ऑडिटरी फोनेटिक्स की अलग बुक है, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की अलग बुक है। लेकिन जब आप अक्यूस्टिक फोनेटिक को स्टडी करेंगे, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को जाहिर करती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में भी आ जाएगा, ऑडिटरी, दोनों उसके अंदर मर्ज होकर उसके अंदर डिस्कस हो जाएंगी अक्यूस्टिक फोनेटिक्स में। हैव यू गॉट माय पॉइंट? अगर आपको यहां तक पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हैं तो मैं फिर आगे एक और स्लाइड है और हमारी यहां पे आ रही है, फोनोलॉजी वर्सेस फोनेटिक्स। फोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज्ड इन अ नेचुरल लैंग्वेज। ये जी फोनोलॉजी करती है कि साउंड कैसे ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, कैसे वो नेचुरल लैंग्वेज में उसको स्टडी किया जाता है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड। अब ह्यूमन स्पीच साउंड जितनी भी निकल रही है, चाहे वो स्पेनिश में निकल रही है, चाहे वो उर्दू में निकल रही है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज में निकल रही है, चाहे वो केरला लैंग्वेज में निकल रही है, या किसी भी लैंग्वेज में वो साउंड्स निकल रही हैं, ये जो हमारा माउथ है ये फैक्ट्री है प्रोडक्शन। काउंटलेस साउंड हम अपने वोकल कॉर्ड्स के जरिए प्रोड्यूस कर सकते हैं, और एक फोनेटिशियन जो है वो इंटरेस्टेड होता है कि उन साउंड को वैल्यूएट करे, भाई ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, क्या इसका मानी है, क्या कैसे ये प्रोनाउंस होनी है और इसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। एक फोनेटिशियन जो होता है, एक फोनेटिक्स का एक्सपर्ट जो होता है, वो ये लैंग्वेज का लिहाज किए बगैर उनको वैल्यूएट करता है और उनके ऊपर ऑडिटरी, अक्यूस्टिक और आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स अप्लाई करके उसको लर्न करता है। और जब आप ये सारी चीज़ें जो हैं इनको आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे तो आप ये भी जज करेंगे, आपके पास कुछ अपरेटस होने चाहिए, आपके पास टूल्स होने चाहिए, आपके पास लैब होनी चाहिए, ऐसी प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे बैठ के आप इनको उन चीज़ों के जरिए वैल्यूएट करें। आजकल ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपको लैंग्वेज की भी रिकग्निशन करते हैं कि वो कितना बोलता है, तो उससे से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो माइंड के अंदर जो थॉट्स हैं उसको वैल्यूएट करके स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। तो एक फोनेटिशियन जो है ये सारे टूल्स भी अप्लाई करेगा लेटेस्ट और फिर उनको स्टडी करेगा। द फोनोलॉजिकल सिस्टम ऑफ अ लैंग्वेज इंक्लूड्स एन इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। कहता है जो फोनोलॉजिकल सिस्टम है लैंग्वेज का उसमें शामिल होता है एक ऐसा स्टॉक ऑफ साउंड का ऐसा स्टॉक, एंड देयर फीचर, और उसके कहता है फीचर्स एंड प्रैग्मेटिक रूल्स विच स्पेसिफाई हाउ साउंड्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। अब जब आप फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं तो उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है कि वो आपको बता देती है कि ये इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आई विल सी यू टुमारो, आप फौरन जज कर लें ये गुस्से से कहा है या इसने मुझे कल कहीं कत्ल करने तो नहीं आ जाएगा ये। आई विल सी यू टुमारो, आई विल सी यू टुमारो। अगर मैं ऐसे कहता हूं तो फौरन आपको इस वैल्यूएट करके जज कर लें कि भाई इसने गुस्से से कहा, ये क्या कहना करना चाह रहा है मेरे साथ। तो ये जो फोनोलॉजी का नॉलेज है आपको फौरन बताएगा कि ये बात कहां जा रही है। फोनेटिक्स स्टडी विच साउंड्स आर प्रेजेंट इन लैंग्वेज। फोनेटिक्स आपको स्टडी करके बता देगा कि प्रेजेंट लैंग्वेज जितनी भी लैंग्वेजेस हैं एज ए जनरली कि उसकी साउंड्स क्या क्या हैं। फोनोलॉजीज वर्सेस फोनेटिक्स। फोनोलॉजी स्टडी हाउ दीज साउंड्स आर कंबाइंड एंड हाउ द चेंजेस इन अ कॉम्बिनेशन एज वेल एज which sounds can be contrast to produce difference in meanings। अब हमने आप याद करें हमने स्टडी किया था एक डायक्रॉनिक और एक हमने स्टडी किया था डायक्रॉनिक, एक सिंक्रोनिक।
सिंक्रोनिक है कि जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज है उसकी स्टडी है। डाइक्रोनिक ये है कि टाइम की खास वक्त की, मिसाल के तौर पर एलिजाबेथन एज से आप अगर रोमांटिक एज तक स्टडी कर रहे हैं, रोमांटिक एज से आप आगे आ जाएं, मॉडर्न एज तक स्टडी कर रहे हैं, मॉडर्न एज से आप पोस्ट मॉडर्न एज तक स्टडी कर रहे हैं, तो ये खास पीरियड्स की जो स्टडी है, खास एजेस की जो स्टडी है, खास टाइम की एरास की जो स्टडी है, दैट इज कॉल्ड डाइक्रोनिक। तो ये भी आपको इस लिहाज से भी उसको एवेल्यूएट करता है। फोनेटिक्स को भी हम एवेल्यूएट कर सकते हैं खास टाइम पे। फोनेटिक्स सिंपली डिस्क्राइब आर्टिकुलेटरी अकूस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्पीच। फोनेटिक्स आपको सिंपली क्या बताएगा, चीज़ों को जो ब्रांचेज है फोनेटिक्स की वो क्या अकूस्टिक है और ऑडिटरी है, आर्टिकुलेटरी है। मैंने बताया कि आप सिंपली लिख लें, आप इतनी डिटेल बुक्स ना पढ़ें, उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में बता दी। अकूस्टिक फोनेटिक्स का मतलब है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व हैं लैंग्वेज को जज करने के लिए, उसकी साउंड्स को जज करने के लिए, और उसमें वो अपरेटस टूल्स भी हैं जो लेटेस्ट हैं, वो भी डिस्कस होंगे अकूस्टिक फोनेटिक्स में। आपको पता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो स्पीच, ह्यूमन स्पीच साउंड को रिकग्नाइज करते हैं। आपको पता है कि साइंसदान जो हम लफाज बोलते हैं, वे कहते हैं वो भी एवेल्यूएट हो सकते हैं। तो ये सारी जो स्टडी है ये किस एरिया में आएगी, किस एरिया में आएगी, इसी एरिया में आएगी अकूस्टिक फोनेटिक्स में। उसमें फिजिकल एपरेटस, उसमें टूल्स, उसमें लैब, और उसमें जो हमारे कान हैं, हमारा जो माउथ है, ऑर्गन ऑफ स्पीच है, ये दोनों मर्ज होकर उसके अंदर डिस्कस हो जाए। तो फिर अलग अलग से भी हम इनको स्टडी कर सकते हैं, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स में, ऑडिटरी फोनेटिक्स में। आगे देखिएगा ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक। इसमें मैंने आप लोगों के लिए अकूस्टिक फोनेटिक्स जो है वो मैंने लिखा है। दिस इज अ स्टडी ऑफ द साउंड वेव्स मेड बाय द ह्यूमन वोकल ऑर्गन्स फॉर कम्युनिकेशंस। ह्यूमन वोकल जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स का मतलब आर्टिकुलेटर्स भी लिख लें, ये जो हमारे बोलने के सारे जो सिस्टम है बोलने का अंदर हमारे, जैसे हमारी टंग है, हमारी अपर टीथ हैं, लोअर टीथ हैं, लोअर लिप्स है, अपर लिप्स है, यूला है, हार्ड पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट है, फिल्म है, लेरिंग्स है, फेरिंग्स है, लंग्स हैं, और सारा जो ट्रैकिया और वोकल ट्रैक्ट्स जो हैं, ये सारा कुछ जो है ये क्या है, ये वोकल ऑर्गन्स ही हैं सारे फॉर कम्युनिकेशंस एंड हाउ द साउंड आर ट्रांसमिटेड। और साउंड कैसे ट्रांसमिटेड होती है। द साउंड ट्रेवल्स थ्रू फ्रॉम द स्पीकर्स माउथ थ्रू द एयर टू द हियरर्स एयर, यानी यहां से आवाज निकलती है आपके मुंह से और सीधी उसके कानों में पहुंचती है, और कानों के अंदर कोई सिस्टम लगा हुआ है तो जो उसको पिक कर लेती है। अब यहां पे स्पीकर भी डिस्कस होगा और हियरर जो उसको सुनने वाला है वो भी डिस्कस होगा। थ्रू द फॉर्म्स ऑफ द वेरिएशंस इन द एयर, अकूस्टिक फोनेटिक्स आल्सो लुक एट हाउ आर्टिकुलेटरी एंड ऑडिटरी फोनेटिक्स लिंक टू द अकूस्टिक फोनेटिक्स। ऑडिटरी और आर्टिकुलेटरी दोनों फोनेटिक्स मर्ज होके, ब्लेंड होके इसके अंदर डिस्कस हो जाएंगे अकूस्टिक फोनेटिक्स में, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करता है। उसके बाद आ जाएं ऑडिटरी फोनेटिक्स। ऑडिटरी फोनेटिक्स, दिस इज हाउ वी परसीव हाउ साउंड्स एंड हाउ द ईयर्स, ब्रेन, ऑडिटरी। अब देखिए जब हमने कोई चीज रिसीव करनी है तो हमारा ब्रेन भी फंक्शनल होगा, तो तभी हम चीज को अच्छी तरह से परसीव कर पाएंगे। उसमें ब्रेन की स्टडी होगी, उसमें ईयर्स की स्टडी होगी, उसमें हियरिंग की स्टडी होगी, स्पीकर से लेकर जो हियरर है वो कितना पिक कर रहा है, कितना उसको अंडरस्टैंड कर रहा है, वो सारी डिस्कस होगी अकूस्टिक ऑडिटरी फोनेटिक्स में। दिस ब्रांच डील विद द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिसेप्शन ऑफ स्पीच। रिसेप्शन का मतलब रिसीव करने में जो फिजिकल चीजें हैं, फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है, उस सारे प्रोसेस को स्टडी करेगा ऑडिटरी फोनेटिक्स। Articulatory phonetics. Articulatory phonetics is interested in the movement of the variation parts of the vocal tracts during speech. The vocal tract is the passage above the larynx where air passes in the production of the speech. अच्छा, अब ऐसा करें, नीचे हम एक चीज प्रैक्टिकल करेंगे। एक होती है वॉइस साउंड और एक होती है वॉइसलेस साउंड। आप अगर अपने गले में देखें सामने, यहां पे आपके होगा, इसको कहते हैं एडम एप्पल, ये उभरी हुई जब आपके जगह है ना, तो यहां पे आप देखें, आप गले के अंदर, यहां पे आप देखें अपने गले के अंदर ना, ये एक ऊपरी सी जगह होती है, हड्डी से होती है ना।
अब इस हड्डी पे अगर आप हाथ रख के बोले, ऐसे बोले फी, तो ये वाइब्रेट करेगी। जब आप बोल रही है ना, तो आप यहाँ पे अगर दो फिंगर्स जो हैं ऊपर रख के आप बोलें, एडम एप्पल पे रखें और आप बोलें फी, तो या आप ऐसा करें अपने कानों में दोनों फिंगर डालें और ऐसे बोलें फी फी बी। अब जिस साउंड पे ज्यादा वाइब्रेशन आपको महसूस हो वो वॉइस साउंड है। वो कौन सी साउंड है? वॉइस्ड। मिसाल के तौर पर आप कानों में दोनों उंगलियां लें, ऐसे उंगलियां रखें, अपने कानों में रखें और उसके बाद बोलें जी वी एस एस एफ। आप दोनों प्रैक्टिकल कर लें, जहां पे आपको ऐसे महसूस हो कि वॉइस बहुत ज्यादा वाइब्रेट होती है, गूंजती है, वो आपकी वॉइस साउंड है। जहां पे वाइब्रेशन नहीं हो रही वो वॉइसलेस है। जैसे एस और एफ जो है ये वाइब्रेट नहीं करता। आप अगर दोनों फिंगर अपने यहाँ पे रखें एडम एप्पल पे, तो एडम एप्पल पे दोनों आप फिंगर रखें, उसके बाद बोलें एफ एस, वाइब्रेशन नहीं होगी। आप बोलें पी, वाइब्रेशन होगी। आप बोलें जी, वाइब्रेशन होगी। वी, वाइब्रेशन होगी। यानी ये वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस करती है वो आपकी वॉइस साउंड है। यहां पे उसने भी यहां पे डेफिनेशन देखिएगा दी है, व्हेन द वोकल फोल्ड्स आर स्प्रेड अपार्ट द ears फ्रॉम द लंग्स passes between them without obstructions, sound produced in this way are described as voiceless. Sounds such as S and F are voiceless. लेकिन आप जरा P और B को अपने कानों में दोनों फिंगर्स जो हैं वो डालें और उसके बाद बोलें जरा P और B। अभी प्रैक्टिकल करते हैं P B। आप देखें कि कैसे आपको फील होगा कि जैसे वाइब्रेशन हो रही है। When the vocal folds are drawn together, the ears from the lungs repeatedly pushes them apart. यानी वो pushes होती है एकदम, तो it passes through creating a vibration. वो वाइब्रेशन क्रिएट करे, तो फिर वो इफेक्ट क्या होगा? वो साउंड प्रोड्यूस इन दिस वे आर डिस्क्राइब एज द वॉइस्ड साउंड। ये इंग्लिश के अंदर वॉइस साउंड होगी, जैसे साउंड सच एज जी और वी उसने नीचे बताया हुआ है। ये सारी चीजें हम मजीद जो है कल डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन आगे आपके यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, उसको मजीद देख लें। द पॉइंट वेयर द साउंड इज प्रोड्यूस इज रेफर टू एज अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, यानी वो ऐसी जगह जहां से आर्टिकुलेशन होती है, जहां से आवाज निकलती है या वो प्रोडक्शन का कॉज बनती है, वो सारी प्लेसेस को कहते हैं आर्टिकुलेशन, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। और हमारा माउथ जो है डेफिनेटली यही है, प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब एक मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है, एक प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कस प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन एंड मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। आप भले इसको 100 दफा बुक से पढ़ लें, अगर आपको इनका पता नहीं चल रहा कि प्लोसिव साउंड क्या होता है, फ्रीकेटिव साउंड क्या होता है, फ्रीकेटिव साउंड क्या होता है, कहां से साउंड निकले तो उसे फ्रीकेटिव कहते हैं, कहां से निकले तो वो प्लोसिव साउंड बनती है, भले 100 टाइम बुक्स को पढ़ लें, बुक में डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आपको नॉलेज मिलेगा, समझ नहीं आएगी। हम आपको यहां पे बताएंगे इंशाल्लाह कि व्हाट इज प्लोसिव साउंड, व्हाट इज मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, व्हाट इज प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। अब देखिए ये सारी चीजें आपके सामने हैं। आप यहां पे वोकल कार्ड लिखा हुआ है, ये देख लें, उसको उसके बैक साइड पे एक पॉइंट बना हुआ है, लिरिक्स लिखा हुआ है। ऊपर जो टंग है उसको मेंशन किया हुआ है और उसके बैक साइड पे फेरिंक्स लिखा हुआ है। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जहां से जो मैं पहले डिस्कस है। यूबला जो है ये पीछे जिसको हम कवा कहते हैं। फिर उसके जो वेलम है ना, वेलम को सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं, लिख लें उसके साथ वेलम, VELUM, वेलम। वेलम को सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं। हार्ड पैलेट जो है ना, आप जरा अपनी जबान से ऊपर लगाएं, अपने जो उसका रूफ है माउथ का, अपनी जबान से लगाएं तो एक आपको सख्त हार्ड सा एक हिस्सा मिलेगा, और उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाएं, जहां पे कव्वे वाली साइड पे, यूबला की साइड पे, तो वहां पे देखेंगे वो सॉफ्ट होगी वो जगह। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अपनी आप टिप ऑफ टंग से या अपनी जुबान को उठाएं तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो माउथ है उसका रूफ है, जो हमारी माउथ के अंदर उसका जो रूफ है, जो उसकी छत है जो हमारे माउथ के ऊपर, तो वो आपको एक हार्ड सी लगेगी। उसके पीछे आप थोड़ी सी जाएंगी,
आप अपनी टंग को, अपनी ज़ुबान को ज़रा पीछे लेके जाएंगी यूवला की साइड पे, तो आपको वहाँ पे सॉफ्ट सा हिस्सा मिलेगा, उसे कहते हैं सॉफ्ट पैलेट, उसे हम वेलम भी कहते हैं। उसके आगे थोड़ा सा आ जाए तो उसे कहते हैं हार्ड पैलेट। अगर आप अपने टिप ऑफ टंग को ऊपर वाले दांतों से, दांतों की जो उभरी हुई पीछे जगह है यहाँ पे लगाएं टिप ऑफ टंग को, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे है अल्वीलर रिज, थोड़ा सा उभरा हुआ दांतों के पीछे हिस्सा है, इसको कहते हैं अल्वीलर रिज। इससे भी कुछ साउंड प्रोड्यूस होती हैं। आप साथ साथ तजर्बा करती जाएं। और उसके अल्वीलर रिज भी है, वहाँ पे पॉइंट भी किया गया है, आप उधर से भी देख सकती हैं। वोकल कॉर्ड्स का बताया गया है। मजीद हम जब ऑर्गन ऑफ स्पीच डिस्कस करेंगे उसमें सारी चीज़ें आपको डिस्कस करवाऊंगा। द पॉइंट वेयर अ साउंड इज प्रोड्यूस इज रेफर टू एज अ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। सिंबल्स आर इनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब देखिए बलेबियल साउंड, जो लिप्स के साथ साउंड प्रोड्यूस होती है ना, उसको हम बलेबियल साउंड कहते हैं। दी साउंड आर फॉर्म्ड यूजिंग बोथ अपर्स एंड लोअर। जब दोनों लिप्स से मिलके कोई साउंड बनती है तो हम उनको क्या कहते हैं, बलेबियल साउंड। जैसे फैट, फैट, अब फैट बोले दोनों लिप्स साथ मिल जाएंगे। बैट, वे, मोहम्मद, मोहम्मद। अब मोहम्मद का वर्ड जो है वो बोले दोनों लिप्स जो है वो साथ मिल जाएंगे। मोहम्मद, फैट, बैट। बस कुछ ऐसे भी वर्ड होंगे जो जैसे वो हमारे सीधे हलक से ही हम सीधे निकल जाएंगे, जैसे हॉट, हैव, हॉट। तो वो सीधे हमारे ऐसे लगता है जैसे वो वोकल कॉर्ड से हमारे सीधे बगैर रुकावट के निकले। यानी ये अलग-अलग से साउंड है हर वर्ड्स की। कहते हैं अल्फाज जो हैं वो बड़े मानी रखते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का फरमान है कि इंसान को ज़ुबान सीखने में ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 साल लग जाते हैं। इंसान सीख लेता है, बच्चा सीख लेता है लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में वो अपना रिदम, पाज, इवन इंटोनेशन, गुस्से को भी, एक्सप्रेशन को भी समझने लग जाता है बच्चा। वो थोड़े अरसे में इंसान सीख लेता है लैंग्वेज। लेकिन कौन सा लफ्ज़ कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, वो सारी ज़िंदगी नहीं आता इंसान। अब इससे बढ़ के भी और बात करें, कुछ लोग कहते हैं कि अल्फाज कोई मानी नहीं रखते। हर लफ्ज जो मुंह से निकलने वाला है वो किसी के ऊपर कोई इफेक्ट कर रहा होता है। मेरे टीचर ने मुझे एक दफा कहा कि यार हमने बहुत ज्यादा आजमा लिया लोगों को, हमने बहुत सारे पॉलिटिशियन को आजमाया, हमने एक ऐसा पॉलिटिशियन है उसे आजमाया नहीं, हमें उसे आजमा लेना चाहिए। मैं किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं था, तो जब मैंने अपने उस्ताद के मुंह से ये सेंटेंस सुना कि यार एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसे हमें आजमाया नहीं है, हमें उसे आजमा लेना चाहिए, तो मैं उसकी तायद करता करता यहाँ तक कि काफ़ी साल उससे सपोर्ट करता रहा। उसका एक सेंटेंस मेरे उस्ताद का, मेरे प्रोफेसर का, जो मुझे कायल कर गया कि हमें उसे आजमाना चाहिए। मैं एक काफ़ी देर तक उसे सपोर्ट करता रहा। इट मीन कि सेंटेंस, अल्फाज जो किसी के मुंह से निकलते हैं, दे अफेक्ट, दे चेंज पीपल, दे गिव डायरेक्शन पीपल, दे गाइड पीपल, दे इंस्ट्रक्ट पीपल। अब वो कैसे अल्फाज को निकालता है, कैसे बयान करता है, कैसे उसका अंदाजे बयान क्या है, वो कैसे कन्वेंस करता है, किस तरह की रेट्रिक यूज करता है, कैसी परसुएसिव लैंग्वेज यूज करके कायल करता है, ये डिपेंड करता है स्पीकर पे। वर्ड्स फैट, बैट, दोनों लिप्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। बोले मेरे साथ, बोले फैट, बैट, वे, मैट। अब ये जो हमारे लिप्स हैं ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होके वो साउंड जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये इसको हम कहेंगे बलेबियल साउंड। अगर बलेबियल साउंड वो पूछ ले, लिबियोडेंटल पूछ ले। लिबियोडेंटल का मतलब है कि आपके लिप्स भी इन्वॉल्व होंगे और साथ डेंटल, डेंटल क्या, दांत, टीथ, ये भी। तो वो साउंड दे आर रिप्रेजेंटेड एज, इसको हम कहते हैं दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल्स फा, पा, म। तो ये सारे साउंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व। अब लिबियोडेंटल, लिबियोडेंटल साउंड ऐसी साउंड है जो आपके अपर टीथ और लोअर लिप्स जो हैं वो दोनों मिलके प्रोड्यूस करते हैं। आपके अपर टीथ, लोअर लिप्स। ये कौन सी साउंड है? फैट, फैट, फैट। टीथ कौन से? अपर टीथ, फैट, फैट। बोले मेरे साथ, पता चल जाएगा, वैट। एंड द फाइनल साउंड ऑफ
सेफ, सेफ, सेफ। हम जैसे सेफ बोल रहे हैं, अपर टीथ और लोअर लिप्स दोनों मिले हुए हैं, ये मिलके फंक्शन कर रहे हैं। एंड सेफ आर लिब्योडेंटल्स। सिंबल्स आर कहता है फा, और ये जो वी की साउंड है, ये दोनों जो साउंड्स हैं ये भी कहता है इसी की फा साउंड है। फा को भी आप बोलें फा, तो ये साउंड भी इसी के जरिए प्रोड्यूस होती है। तो इसके बाद द फाइनल साउंड्स इन द वर्ड खफ, खफ, ये जी एच जो है ये एफ की साउंड देता है। फा फा फा, अजय फा साउंड करें, फा, ग ग, और ख। अब खा साउंड जैसे ही आप बोलेंगे तो आपको पता होगा कि सॉफ्ट पैलेट को टच कर रही है कोई चीज। कैच, इट्स माई कार, आई टोल्ड यू, आप कहें टोल्ड, आपकी टिप ऑफ टंग फॉरन टिप अलविलर रिज को टच करेगी। I've told you many times the definition of phonetics and phonology. I've told, मैं आपको told भी कह सकता हूँ, टोटली पंजाबी एक्सेंट, उसमें तो ये चीज़ इन्वॉल्व ही नहीं हो रही, तो इसका मतलब है हम वो सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे। I've told you many times the definition of phonetics and phonology. I've told और I told दोनों में कितना फर्क है प्रोनाउंसिएशन का। I've told you so many times it is my car. अब कार की जो साउंड है आप ये प्रोड्यूस करें अपनी माउथ से तो आपको पता चलेगा कि कोई चीज़ सॉफ्ट पैलेट को टच कर रही है। जब मैंने टोल्ड बोला तो वो टिप ऑफ द अल्विलर रिज को टच कर रही है, ये क्या होगी, अल्विलर साउंड बनेगी। जब मैं खफ कहूँगा तो ये क्या, लिबियोडेंटल साउंड बनेगी। जब मैं फैट कहूँगा लिबियोडेंटल साउंड बनेगी। जब मैं फैट कहूँगा, सेव कहूँगा, ये खफ कहूँगा, लिबियोडेंटल साउंड। फोड़ो, Do you know photography? आप फोटो के ये अपर टीथ और लोअर लिप्स दोनों इन्वॉल्व। होप यू गॉट द पॉइंट। डेंटल साउंड, अब डेंटल साउंड कौन सी है? These sounds are formed with the tongue tips behind the upper front teeth. अपर जो फ्रंट टीथ है इसके जो बिहाइंड पे, इसको कहते हैं डेंटल साउंड। These sounds are formed, ये ऐसे बनती है, ऐसे फॉर्म्ड होती है with the tongue टिप, यानी जो टंग की टिप है ना, ऊपर वाला हिस्सा है, बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। ये जो अभी मैंने टोल्ड का जो वर्ड बोला है ये भी वही डेंटल साउंड है। कहते हैं इनिशियल साउंड ऑफ द थिन थॉट, टोल्ड, ये सारी यही साउंड है। एंड पैथ आर बोथ डेंटल, जैसे वो था है, था साउंड है, तो ये दस, देयर, देन, दी, ये सारी साउंड इसमें आती है। अल्विलर साउंड, ये अभी मैंने आपको बता दिया है, इसको देख लीजिएगा। टॉप, डिप, सिट, जू, नट, ये टिप ऑफ द टंग अल्विलर रिज को टच कर ले तो वो अल्विलर साउंड है। ये इसमें है जा साउंड, न, ल, र, ठ और डा बोले तो टिप ऑफ द टंग फौरन जो है अल्विलर रिज को टच कर लेगी। श, ये ठ, ट, ज, न, र, स, फौरन टिप ऑफ द टंग फौरन अल्विलर रिज के ऊपर टकराएगी यार। ये देखिए फोनोटिशियंस जो है उन्होंने इसके पे रिसर्च की है। आप माने या ना माने, ये एक प्रोसेस है लैंग्वेज का। पैलेटल साउंड, पैलेटल मैंने बताया एक हार्ड पैलेट एक सॉफ्ट पैलेट है। अब हम इसको स्टडी करेंगे। साउंड प्रोड्यूस विद द टंग एंड द पैलेट्स आर कॉल्ड द पैलेटल साउंड। जब भी आपकी टंग जो है, टिप ऑफ द टंग या आपकी फ्रंट, अब जो आपकी ये टंग जो है ना, ये जबान है, इसके भी तीन हिस्से हैं। इसका टिप ऑफ द पहला हिस्सा, मिडल हिस्सा, एंड वाला हिस्सा, एंड पॉइंट भी होता है आपकी टंग। ये तस्वीर के ऊपर बना हुआ पिक्चर देख लीजिएगा। कहता है साउंड प्रोड्यूस विद द टंग एंड द पैलेट्स आर कॉल्ड द पैलेटल्स। द इनिशियल साउंड्स इन द वर्ड्स शाउट एंड चाइड, देख लें, छ, श, ये दोनों साउंड जो है जैसे आप प्रोड्यूस करेंगे फौरन ये हार्ड पैलेट को टच करेंगे। श बोले, छ, साथ मेरे साथ बोलेंगे तो आपको पता चल जाएगा। शाउट, चाइड, श,
shout, shoe, shoe. Do you have shoe? Have you worn shoes? Shoes. फौरन आपकी जो फ्रंट जो आपकी जो टंग है ये फौरन सॉफ्ट हार्ड पैलेट को टच करेगी ऊपर जाके, इसको कहते हैं पैलेटल साउंड. सो द वर्ड शू ब्रश बिगिंस एंड एंड विद द पैलेटल साउंड. चर्च, चर्च बिगिंस एंड विद द पैलेटल साउंड. आपको समझ आ रही है या मैं ऐसे ही बोल रहा हूं? जहां पे ना आए मुझसे पूछिएगा. और यहां पे मैंने आपको जो बताया है, मैंने पहले भी वेलर साउंड जो बताई थी, मैंने बताया था इसके सॉफ्ट पैलेट भी कहते हैं व्हीलर साउंड को. साउंड प्रोड्यूस विद द बैक ऑफ द टंग, यानी जो आपकी टंग है इसका बैक भी होता है, और ये जब टच करता है जाके उसको सॉफ्ट पैलेट को, तो आप खा साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे वो ग ख न, तो ये देख खिल गो, कैट, कार, court, king, ring, sing, give, gun, girl, she's a good girl. तो ये साउंड सॉफ्ट पैलेट की तरफ आपको फील होगा कि मेरी सॉफ्ट पैलेट को टच कर रही है. किक, कॉक, कुक. सर आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट. तो उसके बाद है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जो है कल इंशाल्लाह आपको मैं टीच करूंगा. मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या होती है उसमें मैं डिस्कस करूंगा. अब फ्रीकेटिव साउंड क्या होती है, प्लॉसिव साउंड क्या होती है, ऑर्गन ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ऑर्गन ऑफ स्पीच क्या है, प्लॉसिव साउंड क्या है, फ्रीकेटिव साउंड क्या है, अफ्रीकेटिव साउंड क्या है, ये हम प्रैक्टिकली कल इंशाल्लाह इन चीज़ों को देखेंगे. होप यू हैव गॉट लॉट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, difference between phonetics and phonology. You have learned about the branches of phonetics like acoustic phonetics, auditory phonetics और उसके बाद articulatory phonetics. कल हम जब organ of speech को डिस्कस करेंगे, हम पैसिव आर्टिकुलेटर्स को डिस्कस करेंगे और सारे सिस्टम को बल्कि स्टडी करेंगे. उसमें आपके पिक्चर बनी होगी आपकी असाइनमेंट के ऊपर, साथ साथ बताऊंगा कि ये चीज़ें कहाँ इन्वॉल्व होती हैं. और जब हम इस फोनेटिक्स को लर्न कर लेंगे, फिर हम फोनोलॉजी में वावल को देखेंगे, स्ट्रेस देखेंगे, जो स्ट्रेस कहाँ होता है या कहाँ रिदम होता है, कहाँ इंटोनेशन होती है, कहाँ स्ट्रेस होता है. फिर मज़ीद वावल, कॉन्सोनेंट, लॉन्ग वावल, शॉर्ट वावल, इनकी साउंड कैसे प्रोड्यूस होती हैं. और उसके बाद फ्रंट वावल क्या हैं, बैक वावल क्या हैं, हमारी पूरी जो हमारी ज़बान है इसके कहाँ कहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सारी हम फोनोलॉजी के सेक्शन में आगे देखेंगे. उसके बाद जो हमारा एंड जो है वो डिस्कस करेंगे, मज़ीद जो असाइनमेंट है लिंग्विस्टिक की वो हम डिस्कस करेंगे. और उसके बाद इंशाल्लाह हम ड्रामा की जो टेक्स्ट है वो स्टार्ट कर लेंगे. होप यू हैव लर्नड अ लॉट टुडे. स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम.